नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर नॉर्थ ईस्ट के 3 छात्रों की मौत ने राजधानी में सनसनी फैला दी है। ताजा वाकया मुनीरका इलाके का है, जहां थैंक्सोलियान दिल्ली के आरके पुरम इलाके में स्टेनोग्राफर का कोर्स कर रहा था। बताया जा रहा है कि थैंक्सोलियान गुरुवार रात अंबेडकर स्टेडियम से मैच देखकर घर लौटा था, जब सीढ़ियों पर उसकी मौत हो गई। वहीं इससे पहले दिल्ली के कोटला मुबारकपुर से 33 साल के मणिपुर के छात्र जिंगराम की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को कुछ ही घंटे बीते थे कि खिड़की एक्सटेंशन से 21 साल के छात्र की लाश उसके कमरे से बरामद की गई। पूर्वोत्तर के लोगों के साथ राजधानी दिल्ली में बढ़ती हिंसा ने केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों की लगातार हो रही मौत ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस सुरक्षा के वादे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के निवासियों पर अटैक का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा को लेकर किए गए सभी वादे आज ढकोसले साबित होते नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा को लेकर काफी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो वादे आज महज सवाल बनकर रह गए हैं। अजीत डोभाल का ये कहना था कि केंद्र सरकार और पुलिस सदैव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ है, लेकिन दिल्ली में 24 घंटे के अंदर नॉर्थ ईस्ट के 3 लोगों की मौत सब बयां कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बस्सी ने भी ये बयान दिया था कि पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बेस बरुआ कमेटी बनाई गई, हेल्पलाइन शुरू की गई, लेकिन इसके बावजूद भी क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता गया है। ऐसे में ये तो साफ है कि केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली पुलिस, सभी की तरफ से किए गए वादे आज महज वादों तक ही सीमित रह गए हैं। I'm sure you know that this cell has been set up recently. There are some problems regarding infrastructure for various units of police, not only the northeastern cell, but for instance, you see, we have got 181 police stations in Delhi. Out of 181 police stations, approximately 130 police stations are functioning from regular buildings. Others are in either in porta cabins or in temporary buildings or in rented accommodation. So we have some problem of infrastructure which are not unique only to this particular cell which has been set up recently, but we have set up this cell at Nanakpura, keeping in view the fact that our Joint Commissioner, who is heading our special unit for protection of women and children, he is also heading this northeastern cell. So to ensure that the utmost attention can be paid in supervising the activities of this cell, we have located that cell at Nanakpura, and the facilities are developing, and it's a question of time before because the whole Nanakpura complex is ultimately going to be redeveloped, and so it's a question in times to come this cell will have its regular building. And as far as investigating powers are concerned, you see, because this question is because of some lack of understanding of police functioning. You see, we want that a person who is a victim should not be made to suffer because of distance. Say if somebody who is living in Rohini, if he has any problem, then the Rohini police station should be able to address the problem. If somebody lives at Najafgarh, the Najafgarh police station should be able to address the problem at Najafgarh itself, because we don't want a victim to travel from Najafgarh to Nanakpura or Rohini to Nanakpura to get his problem redressed. So that is why what we have done is we have ensured that every police officer in every police station is sensitized about the need to ensure protection of vulnerable communities, which include women, children, those who hail from northeast, senior citizens, that if they face any problem and when they approach the police station, utmost help is given and their problems are redressed. अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की ईस्ट कामेंग यूनिट ने राज्य सरकार से मांग की है कि वो कामेंग जिले में रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मंजूर की गई 1.66 करोड़ की राशि की जानकारी दे।
हकोला, सेजोसा, पाके, केसांग की सड़कों के विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ने फंड जारी किया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा सड़कों की मरम्मत के लिए कोई टेंडर नहीं निकाला गया। बीजेपी मंडल के जनरल सेक्रेटरी कुली ताचांग और वाइस प्रेसिडेंट अकुंग केयांग ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने फंड का दुरुपयोग किया है। कुली ने राज्य सरकार से मांग की है कि वो साल 2013-14 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल द्वारा सड़क विकास के लिए मंजूर की गई राशि की जानकारी दे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार फंड की जानकारी नहीं देती तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं बीजेपी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। हमारे राज्य सरकार से, कांग्रेस सरकार से मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2013 और 14 के बीच अंडर एनईसी स्कीम के तहत ये 166 करोड़ जो रुपया सैंक्शन हुआ था, इटाकोला से लेके सेजूसा सगाली रास्ता पाकिकेसंग, सॉरी सगाली नॉट सगाली, पाकिकेसंग और रोड मेंटेनेंस का डेवलपमेंट का, तो अभी तक ये काम शुरुआत क्यों नहीं हुआ? और सरकार एनआईटी देने के लिए, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर देने के लिए क्यों इतना हिचकिचा रहा है? इसका कारण क्या है? इसका लेट होने का वजह हम लोग जानना चाहता है। अगर पैसा आया है तो काम शुरू क्यों नहीं हो रहा? सेंट्रल जो मॉनिटरिंग टीम है वो विजिट करके इसको देखने से ठीक है, और विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस टीम जो उसको विजिट करने से ठीक है। उसके बाद में हमारा एमपी किरण जी से भी अनुरोध करता हूँ, इसको ये मुद्दा को थोड़ा गौर करने से ठीक है। हमारा अरुणाचल में बहुत, ये अकेला नहीं है, हमारा यहीं का अकेला का नहीं है, बहुत ऐसा जगह अभी भी पड़ा हुआ है, पूरा घोटाला से पूरा ख़त्म होकर रखा है। तो इसको सुधारने के लिए है हम सबको एक साथ चलना है और आवाज़ उठाना है। अरुणाचल प्रदेश के पापुम-पारे जिले में पंचायत ने फरमान जारी कर पेड़ों की कटाई और शिकार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। प्रदेश की सुंदरता को कायम रखने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के मकसद से ये कदम उठाया गया है। लोगों को प्रतिबंध के बारे में सचेत करने के लिए क्षेत्र में कई साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों के लिए 50,000 रुपए दंड भी रखा गया है। पामो गांव के मुखिया ताचा मारखा ने बताया कि शिकार और मछली पकड़ने पर प्रतिबंध कई सालों से लागू है, लेकिन लोग लगातार आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। ताजा मारखा ने जिला प्रशासन और वन विभाग से आग्रह किया है कि वो लोगों द्वारा किए जा रहे उल्लंघन पर नजर रखें। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को साफ और स्वच्छ रखने के मकसद से शनिवार को ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने सफाई अभियान चलाया, जिसमें व्यापारी समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। IMWA के प्रेसिडेंट युमलांग अचुंग ने बताया कि जनता को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया था। उन्होंने जानकारी दी कि अब से सप्ताह में एक बार अभियान चलाया जाएगा। युमलांग अचुंग ने बताया कि शहर को क्लीन और ग्रीन रखने से पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान उन्होंने सभी से अपील की कि वो कचरा कूड़ेदान में ही डालें और अपने आसपास के इलाके को साफ रखें। टाउन क्लीन होना है, ये राजधानी ईटानगर अरुणाचल का, तो हम लोग कमेटी का ड्यूटी होता है। और हम लोग सब दुकानदार से और जितना पब्लिक से हम लोग अपील है कि अपना टाउन को क्लीन करना है और साथ देने से आता है। और इस प्रकार का गंदा होने से तो साफ कौन करेगा? ये हम अपना जगह है तो हम लोग खुद ही साफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग वीकली हम लोग सोशल सर्विस हम लोग जारी, आज जो किया हम सेटिस्फाई नहीं हुआ है और करेगा। वीकली आप लोग करेंगे? हाँ, वीकली हम लोग करते जाएंगे। जब साफ सुथरा है तो हम लोग करना जरूरी है। इसके लिए क्या आपको म्युनिसिपल काउंसिलर या यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ फायदा मिला? कुछ भी हेल्प भी हम लोग ट्रक कहीं से रिक्वेशन किया है। क्या ये आपने भाड़ा में लिया या कहीं कोई मालिक से ये हम लोग रिक्वेशन किया है? जैसे हम लोग ब्लेम चलो रिक्वेशन किया है, तो रिक्वेशन नहीं करने से ट्रक आए नहीं, सुबह से पूरा गंदा जमा के रखा है। हम लोग म्युनिसिपल से भी, कुछ गवर्नमेंट से भी हम लोग कुछ हेल्प नहीं है।
अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगन के डायरेक्टोरेट हेल्थ सर्विसेज में अरुणाचल फार्मासिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्योग डेवलपमेंट एसोसिएशन ने अरुणाचल रजिस्टर्ड एसोसिएशन के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित करवाया था। सम्मेलन के माध्यम से बताया गया कि फार्मासिस्ट मरीजों की सुरक्षा के लिए किस तरह से काम करते हैं। साथ ही कार्यक्रम में इस बात पर भी चर्चा की गई कि हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार करके फार्मासिस्टों को विभिन्न नीतियों में शामिल किया जाना चाहिए। इस दौरान सोशल एक्टिविस्ट अमिताभ जो प्रकाश चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फार्मासिस्टों की परेशानियों को सामने रखा। साथ ही प्रदेश में ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी, ड्रग वेयर हाउस स्थापित करने की मांग की। वहीं स्थानीय विधायक तागे ताकी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि खराब दवाइयों को मरीजों तक पहुंचाने से रोकना चाहिए। इसके लिए उन्होंने फार्मासिस्टों की मांग का समर्थन किया और डायरेक्टोरेट हेल्थ सर्विसेज से अनुरोध किया कि वो इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करें। वहीं तागे ने हेल्थ पॉलिसी पर बात करते हुए कहा कि नीतियों में बदलाव करने की बजाय उन्हें सही तरीके से लागू करना जरूरी है। हम नीति बनाते रहने से कोई फायदा नहीं है। हमें अभी नियत जागृति करने का समय है। 900 फार्मासिस्ट आउटलेट को अगर हम चाहेगा तो कंट्रोल नहीं कर सकेगा, ऐसा कोई बात नहीं बनती है। हम इसको जिला स्तर पर कंट्रोल करना चाहेगा तो फॉर्मुलेस में बहुत सा पिल्फरेज होने का चांसेस है। अगर इसको हमको कंट्रोल करना है, मेरी सीधी सी एक भावना है, इसको सेंट्रलाइज करके कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश में खेती की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन बात करें इलायची की खेती की तो लोअर सुबनसिरी जिला इसकी खेती के लिए मशहूर है। यहाँ काफी क्षेत्र में इलायची की खेती की जाती है। जिले के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मिलोतामा ने बताया कि जिले में 3 फसलों की खेती की जाती है, जिनमें बड़ी इलायची की खेती प्रमुख है। उन्होंने बताया कि क्रॉप कटिंग सर्वे में ये बात सामने आई है कि जिले में करीब 260 हेक्टेयर जमीन पर 6 टन इलायची का उत्पादन किया जाता है। रातपू गांव में रहने वाली देबिया सानका भी इलायची की खेती करती हैं। उनका कहना है कि इलायची की खेती से हर साल 12 लाख रुपयों की कमाई की जा सकती है। देबिया ने बताया कि बागवानी विभाग की मदद से वो पहले के मुकाबले ज्यादा जमीन पर खेती कर रही है। सांका का कहना है कि इलायची की खेती आज आजीविका कमाने का अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। लार्ज कार्डोमम तो नेक्स्ट ईयर 12 फ्लेक्स मिला है, ये बार भी 12 फ्लेक्स ही मिला है और ज़्यादा मिलना था, थोड़ा ये बारिश का वजह से हर बार हो गया। फिर नेक्स्ट में तो वो ज़्यादा इनकम होगा। हमको तो ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बहुत इनकरेजिंग देता है, वो लोग हमको बिग सपोर्ट देता है। ये लार्ज कार्डोमम तो लगभग ये 3 साल हो रहा है। उसमें मेरा सिर्फ जो हमको अभी हम कल्टिवेट कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ ये 3-4 हेक्टेयर होगा, उससे हम ऐसे प्रोडक्ट मिल रहा है ना। और जो अभी हम नया लगाया है वो 24 हेक्टेयर से ज़्यादा है और नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा कल्टिवेशन। और सब ये डिपार्टमेंट तरफ से हम सजेस्ट लेके वो हम मेरा ऑफिसर तरफ से हम कर रहे हैं। हमारा मेजर जो क्रॉप अभी अच्छा से कर रहा है लार्ज कदमा में है। लार्ज कदमा अभी तो हमारा हम लोग एवरी ईयर क्रॉप कटिंग सर्वे करता है, एवरी ईयर करता है, अभी भी कर रहे हैं हम लोग, इस साल भी कर रहे हैं। उसमें लास्ट ईयर तो हम लोग का लार्ज कदम का 260 ये एरिया में 6 टन ऐसा निकला है। 260 है अभी तो कंट्रीब्यूशन करने वाला ना, हेक्टर 260 हेक्टर। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही।